Hello students, today I am going to explain you about the merge sort, okay, in the divide and conquer method. In the last video we have seen what is the divide and conquer method and the control abstraction. Now we are going for the applications of divide and conquer logic. Okay, so in this merge sort we are going to use the logic of divide and conquer method. Okay, so in this video in this concept I am going to explain you the merge sort with example. Second one is I am going to explain you the algorithm of merge sort, and the third one is how to derive the time complexity. These three things I will explain you in this merge sort. First let me explain you the concept of merge sort with an example. Let me explain this merge sort with an example here. These are the number of elements. He is asking us to sort the elements. Sorting means arranging the elements in an order, either ascending or descending order. Okay. So in this for doing this sorting, we are taking help of the logic of divide and conquer method here. Okay. Now what it is? Let me explain this. These are the elements of the list. If you want to accept more than one element, you know that we have to take help of an array. Let's say that I am naming the array as A. Okay. So these are the elements present in the array A. Remember this, these are the elements. Now this is the position 3, 4, 6, 7, 8. You will call it as an index. Okay. Position, whatever it may be. Let's say I am representing it with I. Okay, once again I am telling you, I is nothing but your index, A of I. These are the elements and these are the positions of the elements here. Okay, so in this divide and conquer method, what is our first logic? First you have to divide the large problem into small problems and finally combining them. So first let me go for the first step. First divide the problem. Check whether your problem is large or small. पहले चेक करना है कि हमारा प्रॉब्लम बड़ा है कि छोटा है. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको क्या करना है, अभी हम लोग इसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करना है. कैसे डिवाइड करना है? मीन्स वी यूज द फॉर्मूला मिड. मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2. What is the low here? What is the high here? Mid here. Remember, these are not the values. These are the positions. What is the position? Lowest position क्या है इधर? 0 है. Large high position क्या है? 8 divided by 2. That is equal to 4. So your first subdivision is done at the position 4, not the values. These are the positions. First subdivision is over. Now I got two subdivisions. First let me go for this subdivision. Check whether it is having the small elements or not. In this merge sort, small means one element. Again you are having more elements here. More than one elements are there. What you have to do? Again subdivide it. That is again mid is equal to low plus high divided by 2. In this subdivision, what is your low? 0. What is your high? 4. So 0 plus 4 by 2, that is equal to 2. So your next subdivision is performed at 2. Again let me go for this subdivision. Again I am having 3 elements. One more subdivision. L plus high divided by 2. In this subdivision, your low is 0, your high is 2. So 0 plus 2 by 2, that is equal to 1 here. This is your next subdivision. Again to this subdivision, again you are having 2 elements. So again next subdivision, middle is equal to low plus, again your subdivision is 1 here. Okay. So this is your subdivisions. When I am going for this, it is having only one element, small, no problem. Only one element, no problem. Only one element, no problem. Again it goes and checks here. It is having 2 elements. Again same logic. Middle is equal to low plus high divided by 2.
that is 3 plus 4 divided by 2, that is 3.5. Because it takes, positions are always an integer value, so it will take it as a 3. So our next subdivision is this one. Let me go for this subdivision. Again, it is also having so many elements, low plus high by 2. 5 plus 8. Sorry, 8 plus 5 or 5 plus 8 is 13 by 2, that is 6 point something, because it is an integer, position is an integer. It performs subdivision at 6th position. Repeat the process. This is next subdivision. This is your next subdivision. This is the process of subdivisions here. So your step 1, subdivisions are performed. Okay, here it is completed. What is the logic here? If it is having more than one element, divide till your subdivision gets only one element. This is dividing. Okay, in this divide and conquer method, now divide is completed. Now we have to go for conquering, that is combining the values. While doing the combining only, you are going to perform the sorting. Sorting and combining both are performed at a time here. Okay, in this merge sort logic, not in all logics. Okay, in this merge sort concept, we are going to perform the combining the values with at the time of sorting itself. So sorting and combining both are performed at a time here. Okay, first part is we have completed. Now we are going for this. सो फॉर दिस सबडिविजन्स, हम लोग अभी तक तो सबडिविजन करें, अभी इसको कंबाइन करना है. कैसे कंबाइन करना है? जैसे हम सबडिविजन्स को एक ट्री में बनाए तो अगर ऊपर से नीचे आए तो नीचे से ऊपर कंबाइन करना है. लास्ट में जो सबडिविजन है उसको पहले कंबाइन करना है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल, उसके बाद नेक्स्ट लेवल. से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको एक ट्री फॉर्मेट में ड्रॉ करेंगे तो आपका एलिमेंट्स है 0 to 8 है. उसका पहला सबडिविजन क्या है? 0 to 4 फर्स्ट सब डिवीजन है, 5 to 8 अनदर सब डिवीजन है. सो दोनों सब डिवीजन में डिवाइड करें. उसके बाद क्या करें हम? 0,4 है. 0,4 को कैसे कैसे सब डिवाइड करें? 0,2, 3,4 पोजिशंस है ये. दिस आर नॉट द एलिमेंट्स, दिस आर द पोजिशंस है. उसके बाद 0,2. 0,2 को कैसे सब डिवाइड करें हम? 0,1 है, ये हो गया 2. ओके, और इधर 3,4 है. 3,4 में कैसे सब डिवाइड करें हम? 3 हो गया, ये हो गया 4. ओके, सो 2 एलिमेंट्स, एक एक एलिमेंट है, बस हो गया इसका सब डिवीजन. अभी 0,1 कैसे हो गया? 0 हो गया, 1 हो गया, एक एक का सब डिवीजन हो गया. 5,8 है. सो 5,8 को हम लोग कैसे सब डिवाइड करें हम? 13 बोले तो 5,6 हो गया, ये हो गया 7,8 हो गया. अभी 5,6 फिफ्थ एलिमेंट है, सिक्स्थ एलिमेंट है, सेवन्थ एलिमेंट है, एथ एलिमेंट है. हम लोग ऐसे लिख रहे. वाई मीन्स क्यों ऐसा लिखी मैं बोले तो अब कैसे सब डिवाइड करें वैसे कंबाइन करते जाना है. ऊपर 0,1 है. सो अगर आप सॉर्टिंग करना है तो पहले कौन से एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है? 0,1 को करना है. ये सॉल्यूशंस को इधर लिखना है. उसके बाद ये दोनों को सॉर्ट करना है. इसके बाद ये दोनों को सॉर्ट करना है. ये 2 एलिमेंट्स जो आते हैं ना उसको कंबाइन करके सॉर्ट करके फिर इधर लाना. ऐसा नीचे से ऊपर आना पड़ता है. इसलिए ऐसा नहीं है कि पहले ये सॉर्ट करो पहले ये सॉर्ट करो, ऐसा नहीं होता है. पहले लास्ट में जिसको हम डिवाइड करें उसको पहले सॉर्ट करना है. उस ऑर्डर को याद रखने के लिए आई हैव रिटन इट इन द फॉर्म ऑफ ए ट्री हियर. ओके, नाउ लेट मी गो फॉर द सॉर्टिंग एंड कंबाइनिंग एट ए टाइम. ओके, सो दिस इज एन अरे. अभी ये हो गया सब डिविजन्स. अभी हम लोग कंबाइन करेंगे. पहले जो दो एलिमेंट्स है, लेट्स सॉर्ट दिस फर्स्ट. ओके, सो हियर 0,1 है, 3,4, 5,6 दो एलिमेंट्स को सॉर्ट करना बहुत इजी है. तो वो भी सेम लॉजिक से, मर्जर के लॉजिक से ही सॉर्ट होगा, लेकिन दो एलिमेंट्स को सॉर्ट करना बहुत इजी है. 5,1 है, 1,5 हो गया. ये और एक सब डिविजन है 2,7 है, 2,7 ही हो गया सॉर्ट आफ्टर सॉर्टिंग. 9,11 है, सेम है. उसके बाद हो गया 10,6 को सॉर्ट करने के बाद हो गया 6,10. ये दो एलिमेंट्स का सॉर्टिंग हो गया है. फिर भी अभी भी हमको बहुत सारे डिविजन्स अभी बाकी हैं. ओके, सो उसको कैसे सॉल्व करना है? ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट सब डिविजन जाएंगे.
दो दो एलिमेंट्स हो गया ना, अभी 3 एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स को जाएंगे। ये है हमारा फर्स्ट सब डिवीजन, इधर आ गया हमारा फर्स्ट सब डिवीजन दैट इज़ 1,5। सेकेंड पोजीशन में क्या है हमारा 3 है। अभी ये दो एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे, सॉल्यूशन को इधर लिखेंगे। सो अभी सॉर्ट करना, कैसे सॉर्ट करते बोले तो फर्स्ट you go to the first element of first subdivision that is 1. Next second element of first element, सेकेंड सब डिवीजन में फर्स्ट एलिमेंट है वो है 3। अभी ये दोनों को कंपेयर करना है 1 and 3, विच इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट हियर, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उसको लिखना है। बिकॉज हम इधर ऑलरेडी लिखे हैं, इसको क्रॉस कर दो, यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट, गो फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट। अभी 5 and 3 को कंपेयर करना है। 5 and 3 को कंपेयर करें तो विच इज़ द लेस एलिमेंट हियर, 3, इसको डिलीट करो, राइट इट एज 3। नाउ 5 है, इस सब डिविजन में 5 है, बट व्हेन यू गो टू द अदर सब डिविजन देयर आर नो एलिमेंट्स हियर। सो अभी आपको एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट है 5। By default you have to write it as a 5. Now see, these 3 elements are combined and sorted. See the result, 1, 3, 5. Yes, these are sorted. Okay, for doing the sorting, while doing the combining only you are performing the sorting here. Okay, हम लोग जब जोड़ते जा रहे तब भी sorting करते जा रहे। ये हो गया फर्स्ट सब डिविजन, ये लेवल पे आ गए हम लोग। अभी ये दोनों को हो गया, ये लेवल पे आ गया। अभी क्या करना है, इन दोनों को सॉर्टिंग करना है। अभी व्हाट इज द सॉर्टिंग हियर, 1, 3, 5 हो गया। अभी ये एलिमेंट्स है 2, 7। अभी ये सब डिवीजन को और ये सब डिवीजन को सॉर्ट करना है। कैसे सॉर्ट करेंगे, सेम लॉजिक, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सब डिवीजन, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सब डिवीजन, sorry, first element of the second subdivision, first element of the first subdivision, first element of the second subdivision, ये दोनों को कंपेयर करेंगे। which is less here, 1, इधर लिखेंगे, इसका सॉर्टिंग हो गया, go for the next element। 3 और 2 को कंपेयर करेंगे, ये दोनों में से अगेन which one is small here, 2 small है, तो 2 को निकाल देंगे, इधर लिख देंगे। 2 का भी सॉर्टिंग हो गया। अभी एरो मार्क किधर लगाना है, नेक्स्ट एलिमेंट को लगाना है। अभी 3 और 7 को कंपेयर करेंगे, कौन सा एलिमेंट कम है, 3 है, तो 3 का भी सॉर्टिंग हो गया। अभी क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट को जाना है। 5 और 7 है, 5 और 7 में फिर कौन सा कम है, 5 है, 5, 7 अकेला है। अभी कंपेयर करने के लिए भी कोई भी नहीं, तो राइट इट एज इट इज। देखो 1, 2, 3, 5, 7, इसका भी सॉर्टिंग हो गया। एक सब डिविजन का सॉर्टिंग हो गया मतलब पूरा सॉर्टिंग होना नहीं है। ओके, यू कांट से दैट इफ वन सब डिविजन इज सॉर्टेड इट डजेंट मीन दैट द टोटल एलिमेंट्स आर सॉर्टेड। उस सब डिविजन के लिए सिर्फ सॉर्टिंग हो गया है, पूरा नहीं हुआ है। ये हो गया 7 तक। अभी दूसरा सब डिविजन भी है, इधर आ गए हम लोग। ओके, सो व्हाट आर द एलिमेंट्स हियर, 1, 2, 3, 5, 7 है। अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम। 5, 6, 7, 8 है। ओके, सो 9, 11, 6, 10 हो गया। अभी इन दोनों का सॉर्टिंग करना है, 5, 6, 7, 8 करके इधर लिखना है। तो अभी इनको कैसे सॉर्ट करेंगे, सेम लॉजिक। ये आपका हो गया सब डिविजन 1 हो गया, ये आपका सब डिविजन 2 हो गया। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर फर्स्ट सब डिविजन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर सेकेंड सब डिविजन, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कौन सा कम है, 6 कम है, निकाल के इधर रख दीजिए। 6 का तो सॉर्टिंग हो गया, अभी इसका ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए जाएंगे। कंपेयर 9 and 10, विच इज़ लेस हियर, 9 इज़ लेस हियर। सो 9 का भी सॉर्टिंग हो गया, इसका 9 का भी सॉर्टिंग हो गया, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, यू गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट। अभी 10 और 11 है, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। विच वन इज हैविंग द लेस वन,
10 इज हैविंग द लेस वन, सो 10 का भी सॉर्टिंग हो गया। अभी एक ही बचा है बेचारा, वो है 11, 11 का भी सॉर्टिंग हो गया। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स आई गॉट हियर, 6, 9, 10, 11। देखिए ये भी सॉर्टिंग है, सॉर्टेड ऑर्डर में है। इस सब डिवीजन तक तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, 6, 9, 10, 11 सॉर्टिंग हो गया। अभी क्या करना है, अभी ये दो सब डिविजन्स को भी सॉर्टिंग करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, पूरा एलिमेंट्स का सॉर्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। कैसे करना है, फिर सेम लॉजिक है, ये है आपका सब डिवीजन नंबर 1, ये है आपका सब डिवीजन नंबर 2। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सब डिवीजन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सब डिवीजन, ये दोनों को कंपेयर कीजिए। किसका कम है, 1, 1 का तो सॉर्टिंग हो गया। उसके बाद क्या नेक्स्ट एलिमेंट को जाएंगे, 2, 2 और 6, विच वन इज हैविंग लेस, 2, 2 लिख दीजिए, इसका भी सॉर्टिंग हो गया। उसके बाद जाइए थर्ड, 3 and 6, विच वन इज लेस हियर, 3, 3 का भी सॉर्टिंग हो गया। अभी क्या करेंगे, 5, 5 and 6, विच वन इज हैविंग लेस, 5, 5 का भी सॉर्टिंग हो गया। अभी जाएंगे हम लोग 7 को, 7 और 6 को कंपेयर कीजिए, विच वन इज लेस हियर, 6 लेस है, तो 6 को इधर लिख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, एरो मार्क, 6 का सॉर्टिंग हो गया, इसलिए नेक्स्ट एलिमेंट को जाएंगे, 9 है। अभी 7 and 9 को कंपेयर कीजिए, विच इज हैविंग द लेस एलिमेंट हियर, 7, 7। अभी अदर सब डिवीजन में एलिमेंट्स नहीं है, सिर्फ इसी सब डिवीजन में एलिमेंट्स है। इफ यू आर हैविंग मोर देन वन एलिमेंट इन द सेम सब डिवीजन एंड अदर सब डिवीजन इज एम्प्टी, there are no elements left to compare, then remember you have to write them as it is, because ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में ही है। एक सब डिवीजन में तो हम लोग ऑर्डर में ही बना के रखते हैं ना, इसलिए इनको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, जो एज इट इज़ लिखे तो बस। अभी हो गया 9, 10, 11, दिस इज योर सॉर्टेड ऑर्डर, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11. This is your sorted. After sorting, the elements are this. Okay. Your starting elements are this, your final elements are this after sorting. So what are the steps here? First one हम क्या करें, डिवाइड करते गए, डिवाइड करते गए, डिवाइड करते गए। उसके बाद क्या करें हम लोग, कंबाइन करते गए। While doing the combining, we perform the sorting here. So either after combining, what is your result here? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11. ये हो गया आपका सॉर्टेड एलिमेंट्स। एक एक लेवल में लिख दिखाते जाएं। ये हो गया 5, ये हो गया 1, उसको सॉर्ट करने के बाद आ गया 1,5, ये 3 था, तो इसके बाद आ गया 1, 3, 5, उसके बाद नेक्स्ट लेवल, उसके बाद नेक्स्ट लेवल, ये आ गया आपका सोल्यूशन। रैंडमली आप सॉर्टिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे आप सब डिविजन्स करते गए, इन द सेम थिंग इन द रिवर्स ऑर्डर यू हैव टू परफॉर्म द कंकरिंग। ओके, रैंडमली इधर एक कंबाइन, इधर एक कंबाइन, इधर एक सब डिवीजन, ये सब डिवीजन को ये सब डिवीजन से कंपेयर करना, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग सब डिवीजन करते गए, सेम रिवर्स में उनको कंबाइन करते जाना है, इसलिए द फॉर दैट रीजन ओनली आई हैव डिजाइन्ड दिस। ओके, ऐसा ऑर्डर में ही रिवर्स जाना बोल के, आपको समझ में आना बोल के ही मैं ऐसे ट्रेड को ड्रॉ करी, सेम आप रिवर्स में जाना पड़ेगा। ओके, यू कांट कंपेयर दिस एंड दिस, दिस एंड दिस लाइक दिस, ऐसा रैंडम में कंपैरिजन का कोई चांस नहीं है। ओके, जैसे नीचे आए सेम वैसे ही ऊपर जाना है। आई होप the concept is clear for you with an example.